Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام سر. Okay, student, we are starting a session. Today, our course content is here. We are talking about the Middle Age. Middle Age, the era between the Dark Age and the late Italian Renaissance. So we have to be start. Here is a course content in front of your screen. You can see that this prescribed by your examiner. Here is the content: classical age versus the dark age, religious institutions in Middle Age and how they influence the medieval period in medieval Europe. Religion and enlightenment. One is age of faith. Enlightenment is the age of reason. What is the contrast and difference between these two? And then we are talk about today the Protestantization of Christianity, how they make reform in religious uh, discourse and religious practices, and then religious domain in Enlightenment, religious uh, religious dominant was highly affect the Enlightenment period as well. And then we already talk about the Saint Augustine philosophy, which is a scholastic philosophy. And what is scholastic philosophy? We have to keep it light from the previous lecture as well. And then we move on to the today's content. That was Protestantization, discursive practice, and how the religious institution control over the Europe in the medieval age. All right. Here is some exam question as well. Would like to share with you that discuss the religious point of view according to enlightenment in the context of medieval age. How religious institute influence the state in middle age. ये बात हो रही है पोप की, पेपेसी की, होली रोमन एम्पायर की, जहाँ पे चर्च बिशप ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था मिडिवल पीरियड में. फिर एक और आइडिया है, डिस्कस द आइडिया ऑफ सेंट ऑगस्टीन. सेंट ऑगस्टीन इज अ स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर, इज अ क्रिश्चियन, और he put their argument on the basis of theological basis. It highly concerned with the concept of God, existence of God, attribute of God, and free will and determinism. So they have theological argument. Why it is called the dark age? Why medieval period? It means here the medieval age. Why middle age is called the dark age? Due to the answer is that due to the Western uh, downfall of intellectual contribution. They are highly engaged in the religious extremism and holy wars, and they're nothing to produce in the dark age. But this age is also known as the age of faith. So it will also be examined as describe the age of faith. Medieval period is also called as the age of the faith because here the faith is dominating over the reason. And then some characteristic of medieval religion. What are the characteristics of medieval period and the medieval religion, medieval age, and why religion is dominating in medieval period? So we have to be quick review over that, and then we continue our session. I have already told you that it was a time of 5th century to 10 to 15 approx. And there is a large Roman world, the Roman Empire, and it's divided into two: the Byzantine Empire, the Eastern Empire, and the Roman Empire. And the Roman Empire, when Christianity spread, this one become completely supervision under the Pope in the church, in the religion. So all literature writing, and even though the translation of the Bible is also writing in the form of Latin as well. ठीक है. तो रोमन एम्पायर का जो अर्ली मिडिल एज है उसकी क्या फीचर्स है? एक तो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन है जो दो हिस्सों में बढ़ गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एम्पायर,
اور جو رومنس سے یعنی گریکس کے بعد رومنس سے جو کنٹریبیوٹ کیا ریلیجن میں, لینگویج میں, لا میں, آرکیٹیکٹس میں, پولیٹیکل ایریا میں, وہ سب ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسری بات اس زمانے کی جو لٹریچر پروڈیوس کرنے کی جو ایک لینگویج تھی وہ تھی لیٹن. آج بھی اگر آپ بہت سے الفاظوں کو دیکھتے ہیں اف یو ایکسٹریکٹ فرام دا ڈکشنری تو یو ول سی دیٹ اٹ از ڈرائیو فرام دا لیٹن ورڈ, اٹ از ڈرائیو فرام دا گریک ورڈ, اٹ از ڈرائیو فرام دا پرشین ورڈ. بیسیکلی یہ گولڈن ایج کے زمانے کی مطلب میڈیول ایج اور ڈارک ایج, یہ وہ نیشنز ہیں جنہوں نے انٹلیکچولی اپنی لینگویج میں, اپنی نیٹو لینگویج میں بہت کچھ پروڈیوس کیا. اسی طرح مڈل ایج کے اندر ایک اور ایک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے مڈل ایج کا ڈارک ایج اور ڈاؤن فال دیکھا, اکنامک کرائسس. وہ کیا تھے؟ وہ تھی بلیک ڈیتھ. بلیک ڈیتھ یہ پینڈیمک تھا جو کہ یورپ میں پھیلا 14 سینچری کے اندر, اور اس نے جو ہے 34 ملین پیپل کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا. تو اس کا بہت گہرا اثر اس کی اکانومی پہ پڑا یورپ کے اوپر, اور یورپ جو ہے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہوا. تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہ ہولی رومن امپائر, یہاں پہ بیزنٹین امپائر آپ کو نظر آ رہی ہے. یو کین سی دیٹ. اوکے, ہولی رومن امپائر اینڈ دا بیزنٹین امپائر. یو کین سی ان دا میپ ان فرنٹ آف یو. یہ جو ایک بڑی امپائر کریٹ ہوئی, اور پھر یہ بیزنٹین امپائر جو ویسٹ کے پاس تھی, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں الیگزینڈریا شہر جو I will tell you about that کی امپورٹنس کیا تھی انٹلیکچولی. یہاں بہت بڑی جو ہے وہ بکس کا ایک جو ہے انبار تھا, لائبریری بنی تھی شہر کی بہت بڑی. ایجپٹ ہو گیا, پھر فلسطین دیکھنے آپ موجود ہے یہاں پہ. اور جو اورنج سے ہے یہ میسوپوٹومیا, جو سب سے پہلی سویلائزیشن ہے جس کو آپ ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کیا, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک اور اسٹیٹ ہے, وہ ابھی آگے جا کے دیکھیں گے ہم, کانسٹنٹینوپل, استنبول. تو اس کی کیا اہمیت ہے وہ بھی ابھی آپ کو پتہ لگے گی. اچھا, اسی دور کے اندر سب کچھ جو میڈیول پیریڈ ہے اس کے اندر بہت ساری انوینشن انوویشنز بھی ہوئی ہیں, جیسے گن پاؤڈر ہے, اکاؤنٹس کی ایجاد ہو گئی, سمجھ لیں بیسک پرنسپلس بن گئے, پرنٹنگ پریس آیا جس کی وجہ سے لٹریری ورک اور زیادہ بیٹر انداز میں پروڈیوس ہونے لگا. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی اس زمانے کی وہ کہ اس میں پوئمز جو ہیں اور فوک ٹیلز بہت زیادہ پاپولر تھیں. اس کی وجہ تھی کہ اس زمانے میں بادشاہت تھی, جیسے ابھی ہم دیکھیں گے کہ فیوڈل سسٹم ہے اور اس کے اندر کنگ لارڈ ہے, فیوڈل ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پریوں کی کہانیاں, شہزادوں کی کہانیاں, اور فیری ٹیلز جو ہیں وہ جینی کی, علی بابا 40 چور ہو گئے, اور شہزادہ اس کو مل گیا, شہزادی ڈھونڈ رہی ہے, سنڈریلا, اس طرح کی, سنو وائٹ, یہ جو قصے کہانیاں تھے جتنے بھی الادین کی کہانی, یہ سب اسی میڈیول پیریڈ میں لکھی گئی ہیں, کیونکہ بیسیکلی وہ بادشاہت کا تھا شہزادہ اور یہ امپیرر. تو یہ جو کہانیاں تھیں وہ اسی طرح کے قصے, حکایات اور داستانیں تھیں, فیبلز جسے کہتے ہیں, سٹوریز جسے کہتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ, اور بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے کے گیم جیسے کہ چیس گیم آپ لوگ کھیلتے ہیں تو وہ پورے فیوڈل سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ایک نائٹس ہیں, پھر اس کے علاوہ پون ہے, پون پیسنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ورکر کسان کو, اور نائٹس ہیں جو رکھوالے ہوتے تھے زمین کے اور بادشاہ کے پروٹیکٹر, اور پھر کوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بشوپس ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ بالکل اسی کی عکاسی کرتا تھا, اور یہ گیم جو ہے وہ بھی میڈیول ایج کی ہی. تو میڈیول ایج کا جو کلچر ہے وہ آپ کو شاید سمجھ آیا کہ وہاں پہ جو ایک سسٹم اگر ہم بات کریں گے تو وہ پورا فیوڈل سسٹم تھا. یہ ہم نے پریویس لیکچرز میں بھی دیکھا تھا. تو ارلی مڈل ایج یعنی جو ارلی مڈل ایج ہے وہ کمپلیٹلی ڈارک ایج اس لیے ہے, اس کو ڈارک ایج کیوں کہتے ہیں, کوشچن اگر آتا ہے تو آپ کے پاس ایک پوائنٹ آف آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ڈارکنیس میں تھا, ویسٹ ڈارکنیس میں تھا, بابینین تھے, واس کی طرف زیادہ تھے, اور قلم کے بجائے تلواروں سے زیادہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ایک انٹلیکچولی انہوں نے اتنا زیادہ کچھ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کیا, اس لیے اس کو ڈارک ایج کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور بہت سے کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ رائٹنگ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ڈارک ایجز کے اندر کچھ بہت سی اور اچھے گڈ کام بھی ہوئے, جیسے کہ یونیورسٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں, یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور بہت سارے جو ہے وہ اس میں اگر آپ کسی ریلیجیس سے پوچھیں, ریلیجیس پرسن, تو وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارا گولڈن پیریڈ تھا, کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے مذہب کے مطابق چیزوں کو ڈھال رہے تھے.
कि जैसे कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स कोई हो या फिर आप मुस्लिम से पूछें तो वो भी ये कहेंगे कि हमारा तो गोल्डन एज है और ये इसको वेस्ट में इसको डार्क एज कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसी में एक शहर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो है कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको इस्तांबुल कहते हैं। ये जो बेज़ंटीन एम्पायर का शहर था, सॉरी, ये कैपिटल रहा है और ये बहुत बड़ी इसकी अहमियत थी, क्योंकि ये जैसे कि आज यूएस डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, इसी तरीके से बेज़ंटीन के जो पॉइंट थे बेज़ेंट, वो एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था कुस्तुनतुनिया, और जिसने इसको फतह कर लिया तो समझो उसने पूरी एम्पायर को रूल कर लिया, ये कैपिटल था। तो यहाँ पे एक रोमन मॉडल फॉलो होता था, यानी गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, पूरा इंपीरियल सिस्टम, पार्लियामेंट है, एम्पेरर भी है, टैक्सेशन हैं, और रॉयल फैमिली जो है वो ज़्यादा, खास करके जो मैंने आपको बताया कि जो चर्च प्रियर्स, पोप, बिशप, ये 1/3 ऑफ द यूरोप जो है वो ओन करते थे, तो बहुत रिच थे, क्योंकि उन्होंने टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा रखा था कि वो चर्च के पास आया करता था, और चर्च ने काफ़ी सारी जो है वो मोनेस्ट्री से लाइब्रेरीज के लिए आप, और वो इबादतगाहें, गिरजागाहें बनाई हैं, तो ये सारा कुछ। तो डार्क एज को हमने बताया आपको, जैसे कि डार्क एज क्यों हम डार्क एज कह रहे हैं, बार बार हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे कल्चर, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली डिटोरिएशन की कोई खास हाथरफा प्रोड्यूस नहीं हुआ। यूरोप डिक्लाइन पे था, रोमन एम्पायर तबाह होने की जो एक बहुत बड़ी एक एम्पायर थी वो डिक्लाइन की तरफ जाती गई, और बेसिकली वो लाइट से डार्कनेस की तरफ जाते गए, यानी अंधेरों की तरफ जाते गए, और इसलिए इसको डार्क एज, मिडिल एज को कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि समटाइम कॉल्ड द मिडिवल पीरियड भी कहते हैं उसको, और मिडिवल लैटिन वर्ड है, इसको मिडिवल का मतलब मिडिल एज ही होता है। और ये कब का टाइम है, रोमन एम्पायर के फॉल से लेकर रेनेसां। रेनेसां क्या है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे, 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड के जो आइडियाज, लाइक 16, 17 सेंचुरी, 15, 16, 17 सेंचुरी, ये जो आइडियाज हैं यानी 200 to 300 ईयर्स, ये रेनेसां है। रेनेसां का मतलब होता है री इंटरप्रिटेशन, जब समझे डार्कनेस से फिर लाइट की तरफ आए, एनलाइटन होना शुरू हुए, रोशन ख्याली, एनलाइटनमेंट। लेकिन ये जो डार्क एज है, जो हाई मिडिल एज है, ये इनके दरमियान है, रोमन एम्पायर के फॉल से लेके रेनेसां के दरमियान था। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रेनेसां पे ही है। राइट नाउ हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, एक रिव्यू हो जाएगा कि मिडिल एज के अंदर सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि जो स्टेट को रूल कर रहा था वो चर्च था, पोप थे, इसको पेपिसी कहेंगे, कंट्रोल सारा का सारा बुक्स के ऊपर, लॉ के ऊपर, बल्कि इंसान की जिंदगियों के ऊपर जो है वो पोप का बहुत बड़ा जो है वो एक कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था। और जो भी किंग होता था वो भी फिर वो उससे एक ताबे हो जाता था, ओथ ले लेता था। तो चर्च हैड द पावर ओवर द किंग एज वेल। इस तरह जो नोबल्स होते थे वो प्रोटेक्ट करते थे किंग को, और किंग को प्रोटेक्ट कर रहे एक तरह से रिलीजियसली तौर पे चर्च, और फिर जो बेचारे पीसेंट हैं, यानी वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो भी नोबल के लिए काम करते थे। ठीक है, जमीनों पे, ये मैं भी आपको फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये हम जो है, अच्छा प्लैग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा मैं आपको वो दिखाता हूँ, यस यस, हियर इज अ, ठीक है। तो चर्च में मैंने जैसे आपको बताया ये पूरा स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर था कि जो मिडिवल एज के अंदर कानून चर्च की तरफ से बन रहे हैं, उसमें हेड ऑफ द चर्च पोप है, रीजनल लीडर बिशप्स होते थे, लोकल अथॉरिटी क्राइस्ट होते थे। और ये जो सिस्टम था ये पूरा एक फ्यूडल सिस्टम बना था, यानी आप देखें नीचे पीसेंट है बेचारा, मजदूर वर्कर फसल काट रहा है, खेती बाड़ी में एंगेज है, उससे ऊपर नाइट्स हैं जो लॉर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्यूडल लॉर्ड जो होता था उसकी जमीनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मजदूर जो है उसको उसकी जमीन पे काश को कोई नुकसान ना पहुंचाए और कोई वॉरियर ना आ जाए और उसको कॉन्क्यूर कर ले। उससे ऊपर जो है वो टेनेंट, यानी जो उसके ऊपर गिरहिन देते थे, लगान देते थे, एक तरह का टैक्स कह लें आप जमीनों के ऊपर, वो लैंडलॉर्ड दे। और उससे ऊपर एक बादशाह। अब बादशाह से ऊपर भी एक है, वो कौन है, वो है पोप, वो है चर्च। और इस तरह से पूरी इतनी बड़ी एक हिरार्की बनी गई थी, जिसके अंदर जो सबसे नीचे ऑप्रेस हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, वो कौन है, वो बेचारा पीसेंट है, वर्कर है, वो फार्मर है, वो मजदूर है, काम सा आदमी है। और इतने सारे टैक्स मौजूद थे मुख्तलिफ नामों के साथ फ्यूडलिज्म के अंदर। एक टैक्स जा रहा है नाइट की प्रोटेक्शन के लिए, तो एक टैक्स जा रहा है जमीन के लिए, तो एक टैक्स जा रहा है बादशाह के पास, एक टैक्स जा रहा है कि वो अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा बादशाह लॉर्ड जो है वो रखा करता था। तो
ये जो देखें ना आप सिस्टम पूरा किस तरह से बन रहा है कि जो है पीसेंट जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहा है, फूड दे रहा है, मतलब फसल उगा के दे रहा है, नाइट्स उसको प्रोटेक्शन दे रहा है लॉर्ड को, और लॉर्ड से लाइव है, क्योंकि वो जो लॉर्ड होता है फ्यूडल लॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करना नाइट्स की गहरी जिम्मेदारी होती थी। फिर उससे ऊपर चले जाएं तो लॉर्ड जो है वो फ्यूडल लॉर्ड है, वो किसको अपना एक हिस्सा अपनी फसल का, फूड का, मुनाफे का वो किंग को दे रहा है, और फिर किंग किसको दे रहा है, वो पोप को, चर्च को। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था। अब इसी के ऊपर अभी आप देखिए एक मजहबी रंग आएगा, यही पूरी की पूरी मिलिट्री सर्विस जो नाइट्स हैं, यही जब होली वॉर डिक्लेयर हुई, जब क्रिस्टियनिटी ने बहुत जोर पकड़ा, तो यही जो है नाइट्स जो है, ये नाइट राइडर्स जो है, ये इन्होंने फिर जो है क्रूसाइड्स लड़ी। क्रूसाइड्स क्या होती हैं, ये एक होली वॉर होती है जो अपनी होली लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिश्चियंस ने ज्यूज के साथ लड़ी, मुसलमानों के साथ लड़ी। तो ये जो नाइट शिप वो फिर कन्वर्ट हो गए होली वॉर्स के अंदर। तो जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे सर, ये अपनी लॉर्ड टू द लाइव नीडेड परमिशन टू मैरी एवरीथिंग अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड, नॉट अलाउड टू लीव लैंड, ये सारे कानून जो है वो लॉर्ड तय करता था। और ये देखें रोमन कैथोलिक चर्च वाज द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द वेस्टर्न यूरोप। मैंने कहा ना 1/3, 1/2 हिस्सा यूरोप का जो है, आज भी इटली में आप जाएं और फ्लोरेंस, रोम और यूरोपियन कंट्रीज को विजिट करें, तो कभी जाना हो आपका, तो आप देखिएगा वहाँ पे चर्च, मोनेस्ट्रीज हमें ज्यादा नजर आती है। स्कूल लेवल पे भी आपने ये चीजें देखी होंगी कि ये जो पूरा फ्यूडल सिस्टम किस तरह से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि नीचे बेचारा मजदूर है और वो काम कर रहा है, फिर वो अपने मवेशी से फसल उगा के वो जो है वो नोबल्स को दे रहा है, और उसके सोल्जर्स हैं यानी नाइट्स जिसे कह रहे हैं, फिर वो सोल्जर्स जो है ये अपना हिस्सा और टाइटल ये बादशाह को दे रहा है, फिर बादशाह जो है वो उसका कुछ हिस्सा फिर मैंने कहा जैसे कि पोप। तो ये पूरा एक माशी निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से चलता आ रहा था। ठीक है, अब इसी में हम इंटेलेक्चुअली बात करें तो मैंने आपसे कहा कि किसी को लिखना पढ़ना है तो वो भी कहाँ का रुख करेगा, वो चर्च का रुख करेगा। रिलीजियस कम्युनिटीज बनी थी मोनेस्ट्रीज के नाम से, जिसमें मॉन्क एंड नन, ये जो मॉन्क एंड नन थे ये अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर देते थे क्रिस्टियनिटी के नाम पे और मजहब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और वो वहाँ पे लिखते पढ़ते, मजहबी इबादत करते, ट्रांसलेशन करते, तो वही फिर लोगों को बता। अच्छा, ये बेसिकली स्कूल थे। अब ये स्कूल इस तरह से थे कि रिलीजियस भी तालीम मिल रही है तो उनको साइंस भी मिल रही है, तो ये इस तरह उनका काम था। और एक और चीज समझाने की जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, देख रहे हैं ना आप, ये जो मिडिवल पीरियड की थॉट आपको नजर आ रही है, एक फ्यूडल सिस्टम है, फिर एक किंग है, और तो ये जो कैसल की तामीर का बड़े बड़े जो महलात जिसे कहते हैं, तो ये बनना शुरू हुए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर रहा। और अब जरा हम आते हैं डार्क एज की जो है वो, ये होली रोमन एम्पायर्स के बाद ये आ जाते हैं हम क्रूसाइड्स, तो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये सारी क्रूसाइड्स क्या है, होली वॉर्स रहेंगे बिज़ेंटाइन एम्पायर्स के लिए। और मिडिवल रिलीजन्स के अंदर बेसिकली मिडिवल पीरियड और मिडिवल रिलीजन में हमने क्या कहा था कि जो कैथोलिक चर्च था वो डोमिनेंट था। आपकी जिंदगी के मामूली से मामूली मामलात को भी कौन डिसीजन लेगा, वो चर्च लेगा, डिवाइन राइट्स जिसे कह रहे हैं। और इसको डिसओबे करना तो ऐसा था क्योंकि किंग को कह रहे हैं कि चूजन है बाय द गॉड। तो अगर किंग की बात को मानने का मतलब, ना मानने का मतलब है ये है कि आप खुदा की बात को नहीं मान रहे, वो डिवाइन बात कर रहा है, वो चूजन है। तो ये जो एक कंसेप्ट था वो होली रोमन एम्पायर की शक्ल अख्तियार कर दिया, और रोमन एम्पायर का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली कैथोलिक। तो आप जरा डिफरेंस देख सकते हैं रोमन एम्पायर से वो कैथोलिक चर्च यानी होली रोमन एम्पायर जिसे मैंने कहा, तो देख रहे हैं पोप के हाथ में आ गया, बिशप्स के हाथ में आ गया, कानून भी जो है वो चर्च के हाथ में रहे। अब इसका असर क्या पड़ा अभी हम देखेंगे किस तरह से ये जो क्रूस, एक तो पहले बात ये कि क्रूसाइड जो हुई है आपके सामने, जो ये देखेंगे सारे वॉरियर नाइट राइडर्स से इन्होंने क्रूसाइड्स लगी, जिसे उर्दू में सलेबी जंगी कहते हैं। बहुत सुना होगा, जो यरूशलेम को सर करना चाहते थे, यरूशलेम जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो है तीनों रिलीजन को के लिए बड़ा एक अहमियत है, होली लैंड है। तो ये जो क्रूसाइड्स थी ये बेसिकली इसीलिए लड़ते गए और क्रिस्टियनिटी इसलिए कि भाई जैसे वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, मुसलमान इसलिए लड़ते क्यों, कहते हैं हमारी होली लैंड है द नेम ऑफ अल्लाह। तो सलादीन, जो सलादीन है सुल्तान ऑफ इजिप्ट,
उसने कंप्यूट किया था जेरूसलम को 1187 के अंदर, और वो क्रूसाइड में इसको फतह हुई। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारा जो एक सिस्टम है वो किस तरह से कोलैप्स हुआ, और उसके बाद हम आगे अगर हम जाएं तो ये इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये देखें, सलादीन ने जब ये जिसको कहते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर थी, बिकम द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिसको कुस्तुनतुनिया का जो है वो इस्तांबुल जिसे कहते हैं, जो ऑटोमन तुर्क्स ने विन किया, तो ये किला पता करना था उस क्रूसाइड्स के अंदर। तो जितनी आखिरी क्रूसाइड हुई है उसके अंदर ये विन किए। और उसके बाद अब हम जरा देखते हैं, ये तो हमने एक पॉलिटिकली देख लिया, तो इंटेलेक्चुअली क्या हुआ, एक पहली यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है, और मेडिसिन पे, लॉ पे काम होना शुरू हुआ, और ये जो यूनिवर्सिटीज का एक करिकुलम है, ये गाउन है, कैप है, शेड्यूल रूम, ये सब जो है ये भी मिडिल एज में हो। तो मिडिल एज में सब कुछ डार्क नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बस्ती की तरफ नहीं है, कुछ अच्छा भी है, जैसे कि तो रिलीजियस चीज़ों का एक हाईलाइट होना। दूसरी बात ये कि इंटेलेक्चुअली ज़्यादा कहते हैं प्रोड्यूस है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज की बुनियाद रखी गई, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, और उसके अलावा एक लैटिन और ग्रीक में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, तो एक ग्रामर, एक लैंग्वेज, एक डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो ये तो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी देखा है सारा कुछ। और अब जरा हम कुछ जो है वो मिडिवल, फिर हमने क्लास में इसको अगर हम देखें तो आइडियाज जो थे वो किस तरह से थे, इसको हम क्यों एज ऑफ फेथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फेथ की बात कर रहे हैं। ओवर द रीजन डिवाइन कमांड की बात हो रही है, गॉड सेंटर्ड है, फिर गॉड, डेविल, एंजल्स, डिमोन ये दुनिया को रूल कर रहे हैं। सब कुछ प्री डेस्टिनी है, ह्यूमन के पास फ्री विल नहीं है, इंसान जो है रैशनल बीइंग नहीं है, बल्कि इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है। तो ये सारा आर्ग्यूमेंट हमने देखा, और उसकी सपोर्ट के लिए फिर हमने सेंट ऑगस्टीन जो एक क्रिश्चियन फिलोसोफर है उनका कंट्रीब्यूशन देखा था। वो कि क्या था, वो ये था कि एक डिबेट थी, वो ये थी कि गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है, गॉड जो है वो ओमनीसाइंट है, यानी गॉड इज ऑल नोइंग, गॉड इज ऑल प्रेजेंट, गॉड इज बेनिवोलेंट, गॉड इज ऑल गुड। तो फिर व्हाई द इविल एग्जिस्ट, इविल क्यों एग्जिस्ट करता है। और इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था, ये जो मैनिचिज्म है, यानी मैनी एक स्कॉलर है, तो उसने एक आर्गुमेंट किया था कि दो तरह की कुव्वत है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दो तरह के खुदा हैं, एक अच्छा खुदा है, एक बुरा खुदा है। उन दोनों के दरमियान जब एक क्लैश होता है तो उसमें से अगर अच्छाई जीत जाती है तो दुनिया में अच्छाई नजर आती है, जब बुराई जीत जाती है तो फिर दुनिया में बुरा, जितनी क्रूसाइड, जंगे, मैसाकार्स, तबाहियां हुई हैं। लेकिन सेंट ऑगस्टीन एक क्रिश्चियन फिलोसोफर है, एक रिलीजियस फिलोसोफर है, थियोलॉजियन है, तो उसने इसके जवाब ऐसे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड इज ऑल गुड, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज लाइट, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, तो देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज गुडनेस, अच्छा ही सब कुछ है। गॉड इज ऑल गुड, द एब्सेंस ऑफ गुडनेस, sorry, the absence of good, हाँ बिल्कुल ठीक है, the absence of goodness is called the evil, the absence of light is called the darkness, the absence of honesty is the dishonesty। तो वो कहता है कि there is only one thing, God is all good। एक बात, दूसरी बात कि हम जिम्मेदार हैं खुद, क्योंकि खुदा ने हमें फ्री विल दी है। Everyone has a free will or we are responsible for our own choices। हमारे पास कंप्लीट अख्तियार है कि हम वेदर वी चूज द गुड और वेदर वी चूज द बैड, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो दुनिया में जितनी तबाहियां हुई हैं, दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई हैं, उसका जिम्मेदार इंसान खुदा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी एक और बात कि भाई जब एग्जाम होता है तो एग्जामिनर अगर पूरा पेपर ही बता दे तो फिर एग्जाम कैसा। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जो जजा सजा का तस्वुर है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा सिरे से। अगर गॉड इंटरवीन कर दे तो गॉड इज नोअर, गॉड इज ऑल नोइंग, बट गॉड हमें टेस्टिफाई करता है हमारे बिलीफ को, फेथ को। तो ये सेंट ऑगस्टीन ने इस तरह से आर्गुमेंट दिए, और ये जो क्वेश्चन रेज किया था कि ईवल जो है वो कहाँ से रेज हो रहा है और ईवल जो है वो दुनिया में है, तो इसका जवाब सेंट ऑगस्टीन ने बताया, यही जो मैंने अभी आपके सामने आर्गुमेंट रखे हैं कि नहीं, गॉड इज द ग्रेट कॉज है, गॉड इज ऑल गुड है, और हमें जितनी ट्रू नॉलेज अटेन होती है वो खुदा से ही होती है, डिवाइन लव, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड।
3-60 ये बाइबल की लाइन है। तो ये सारा आर्गुमेंट हमें नजर आता है। फिर इंसान को दर्जा दे के गॉड क्रिएटेड ह्यूमन एज एन इमेज ऑफ द गॉड, और खुदा ने इंसान को भी जो है वो अपने मिसल बनाया, यानी उसको एक नाइब वाइस बनाया, तो अक्ल दी है खुदा ने, उसको इस्तेमाल करे और वो खुदा की इबादत में इस्तेमाल करे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। फिर उसने ये भी बताया कि ये जो दुनिया में डाउनफॉल आ रहा है इंसान का, उसकी वजह ये है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों में चला गया, मादी चीजों में उलझ के रह गया। तो एक बॉडी है और एक स्पिरिट है, तो वो स्पिरिचुअल चीजों को छोड़ के वो बॉडी मटेरियल फिजिकल चीजों की तरफ गया। यही वजह बनी रोमन एम्पायर के डिक्लाइन और होली रोमन एम्पायर के डिक्लाइन। तो ये बड़ा अच्छा सा उसका एक आर्गुमेंट रहा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो सारा पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके सामने रखा है, गॉड इज परफेक्ट, द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड रिफ्लेक्टेड द परफेक्शन, इविल इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ डिप्रावेशन। इविल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इविल क्या है, ये एब्सेंस है। डिप्राइव कहते हैं महरूमी को, जब आप अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई की तरफ चले जाएंगे। तो ये इसने कॉन्सेप्ट दिया। और एक छोटी सी और कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी में था कि भाई जब इंसान बॉर्न होता है तो उसके साथ वो जो सिन है, जैसे ओरिजिनल सिन कहते हैं, वो एडम एंड ईव ने जो किया, इसकी वजह से वो जन्नत से निकाला गया, तो वो इंसान के साथ इनेट है, यानी बुराई। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, बाय बॉर्न ह्यूमन जो है वो इनोसेंट है, वो प्योर है। अब वो जैसे जैसे गुनाह करेगा तो वो बुरी सोच हो जाएगी, अच्छा करेगा तो अच्छी। ऐसा नहीं है कि इनेट जो है वो कोई इविलनेस उसके साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अब हम आते हैं आज के डिटेल टॉपिक के ऊपर, वो था प्रोटेस्टेंटाइजेशन जो आपके पार्ट है। और देखिए कैथोलिक, रोमन कैथोलिक या कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स, उसके बिल्कुल अपोजिट एक और रिलीजियस मूवमेंट है, उसका नाम है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज को, उसी से एक मूवमेंट चली प्रोटेस्टेंटाइजेशन। ये क्रिश्चियनिटी का एक फिका कह लें, एक फिरका कह लें, या एक तरह का रिलीजियस जो है वो डिफरेंस है। वो क्या था, वो बेसिकली ये था कि 16वीं सेंचुरी से उन्होंने आवाजें उठाई और ये था रिफॉर्मेशन लाना। कैसे रिफॉर्मेशन लाना, रिलीजियस रिफॉर्मेशन लाना। बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, और उन्होंने ह्यूमन से उनके राइट्स भी छीन लिए। कौन से राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, कि वो खुद से पढ़ भी नहीं सकते, खुद से वो चीजों को समझ भी नहीं सकते, उनको किसका सहारा लेना पड़ेगा, पोप का, चर्च का, जो वो उनको ट्रांसलेट करके बताए, जैसी वो इंटरप्रिटेशंस उनको दे। इसी तरीके से उसकी जो निजी जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, उसके भी तमाम तरह मामलात के अंदर उसको किससे मशवरा और इजाजत, परमिशन लेनी है, वो लेनी है पोप से या चर्च से। दूसरी बात, उसको उन्होंने देखा कि जो चर्च है वो एक करप्शन की तरफ आता गया, वो पैसे का इस्तेमाल चर्च और फिर अपनी जाती ख्वाहिशात और चीजों की तरफ लगाता गया। तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसको रिलीजियस रिफॉर्मेशन कहते हैं, और उसमें वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट जो है इंसान को अहमियत दी जाए, और इंसान जो है वो इंसान खुद बजाते खुद भी चीजों को समझ सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट यही है कि मजहब को और स्टेट को, दोनों को अलग किया जाए। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, सेक्युलरिज्म। अब लव सेक्युलर का मतलब क्या है कि रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द स्टेट अफेयर। आई रिपीट इट अगेन, रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द स्टेट अफेयर, यानी सियासत अलग होनी चाहिए, सियासत और रियासत अलग, और मजहब अलग। जो मजहब है, रिलीजियस चीजें हैं, वो एक प्राइवेट मैटर है, वो एक पर्सनल है कि तुम क्या मानते हो, तुम किस पे मानते हो, तुम कैसी इबादत करते हो, तुम इबादत जन्नत, दोज़ख, पैराडाइज, हेवन, ये सब इंडिविजुअल का प्राइवेट पर्सनल मैटर है। पोप डिक्लेयर नहीं करेगा, चर्च डिक्लेयर नहीं करेगा कि तुम बुरे हो, तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, कोई तुम्हारे साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा, और तुम जो है वो तुमने संडे इतने मिस कर दिए और तुम्हें जो है वो एक्सक्रिमिनेट कर दिया, निकाल दिया जाता है इस सोसाइटी से, ऐसा नहीं करेगा। ये इख्तियार जो है वो खुदा के पास है और आपका लाइफ में होगा। तो ये जो एक सेपरेशन था कि चर्च जो है, स्टेट जो है वो रियासत चलाए, सियासत करे, लेकिन रिलीजियस चीजों को इससे बिल्कुल डिफरेंट करे। तो ये बहुत जबरदस्त एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन था, रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, जिससे फिर कलम से कुछ लिखना शुरू हुआ सिलसिला। और लेकिन उस जमाने में जैसे फ्रांसिस बेकन, जिसके आपने कोटेशन सुनी होगी, नॉलेज इज पावर,
اور جو ہے وہ گلیلیو جس نے وہ ٹیلیسکوپ اور بنایا، اور اس طرح سے اور بھی ایک دو نام اور ہیں جنہوں نے جب لٹریچر، ہاں کوپرنیکس کا ریولیوشن. تو یہ جو ریلیجیس چرچ تھے ان کو بہت بھایا نہیں، ان کو کسی نے سزا دے دی، کسی کو جل وطن کر دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا، کیونکہ وہ جو سائنس تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہیریسی، مطلب یہ کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہماری چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ریلیجن کے سامنے سائنس جو ہے وہ بہت کنسیڈر کی جاتی تھی کہ کوئی بری چیز ہے. تو کیوں؟ کیونکہ وہ انٹیلیکچولی چیزوں کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہے، فیتھ اوور دا ریزن ہے. تو جو ریشنالٹی تھی، ریزن تھی، اس کی کوئی اسپیس نہیں تھی. تو یہ جو ریفارم آنا تھا، یہ سارا کا سارا ریفارم جو ہے وہ پروٹیسٹینیشن میں لوتھر کا نام مارٹن لوتھر ہے جس نے یہ ریفارمیشن لانے کی کوشش کی. اور پھر ایک کانسیپٹ ہمیں نظر آیا ہیومنزم، یعنی انسان کو اہمیت دو. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اسی سے رینیسا کا اگلا آرگومنٹ بھی بنے گا کہ وی دا ہیومن آر فرسٹ اینڈ دا ریسٹ آر دا سیکنڈری. ہم پہلے انسان ہیں، باقی سب کچھ ہم بعد میں ہیں. وی دا ہیومن آر دا فرسٹ اینڈ دا ریسٹ آر دا سیکنڈری. تو یہ جو ریفارمیشن تھی جس میں ہیومینٹی کی بات کی گئی، اور پھر انسان اسکول میں لکھنا پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ چرچ بائبل کی چیزوں کو اس نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا. اور اس طرح سے جو ہے پھر ایک یورپ کا کلچر بالکل بدلا، لکھنے پڑھنے کی طرف بھی گیا. اور اس میں بہت سارے کنٹریبیوشنز ہیں، جیسے ایراسمس ہے ایک فلاسفر، کرسچن فلاسفرز ہیں. تو اس میں اس طرح سے چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی اسکرپچر سے، ہولی بائبل کے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریزنز کے ساتھ. اور جو میں نے آپ کو نام بتایا تھا کہ پروٹیسٹنٹ موومنٹ جو ہے مارٹن لوتھر 1483 سے 1546 اس کی برتھ اینڈ ڈیتھ ہے. تو 15 سینچری میں اس آئیڈیاز کا انفلوئنس رہا، اور اس نے ایک نیا ریلیجن جو ہے وہ پروموٹ کیا جس کا نام ہے پروٹیسٹنٹ. اور آج بھی وہ پروٹیسٹنائزیشن کہلاتی ہے، نظر آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اور اس زمانے کے جو ریلیجیس فلاسفر ہیں، یہ چار کا بہت گہرا اثر ہے. ولیم اوکھم ریزر کے نام سے بڑی تھیوری ہے. سینٹ ایکوینس ہے جنہوں نے ایک آرگومنٹ جو دیا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ. سین آگسٹائن جو آپ کو پڑھا چکے ہیں، ایراسمس. اور ایک اور کانسیپٹ ہے تھامس مور کا جو کانسیپٹ ہے اوتھوپیا کا. انہوں نے ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی. وہی بات میں نے جیسے کہا کہ ریلیجن کو اور ساتھ ساتھ میں سائنٹیفک ریلیجیس چیزوں کو. تو اور ایک اور بڑا ریولیوشن جو فیوڈل سسٹم تھا، وہ جو ایک معاشی پولیٹیکل اکنامیکل سسٹم تھا، وہ آپ نے دیکھا وہ ان کو لگا کہ یہ استحصال ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں. جیسے پہلے زمانے میں واریر کانکیورر غلام بناتا تھا، لیکن اب یہاں پہ چرچ کے ذریعے اور یہاں پہ پیسی کے ذریعے اور یہاں پہ فیوڈل لاٹ کے ذریعے جو ہے وہ پیسن کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ اس میں بڑی کنٹروورشل بک تھی اوتھوپیا. اس نے ایک آئیڈیلس لائف بتائی کہ کس طرح سے ایک دنیا بننی چاہیے، لوگ کیسے رہنے چاہیے. اور یہ بڑا کانسیپٹ نے بتایا کہ یہاں پہ سب مل کے رہیں، پرائیویٹ پراپرٹی نہ ہو، کمیونٹی ہو، دوسری بات سب ایک دوسرے سے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، عقل کی بیسس کے اوپر چاہے نہ کہ پاور اور فیم کے اوپر. اس کے علاوہ اس میں سب لوگ 9 to 8 hours کام کریں، اور لوگ اپنی اپنی نیڈس کے اکارڈنگلی کام کریں، اور ان کو ان کی اجرت و معاوضہ ملے. اور یہ جو پورے آئیڈیاز تھے وہ ایک امیجنری آئیڈیا تھے ایتھوپیا کے اندر. تھامس مور نے بیسیکلی اس فیوڈلزم کے بغاوت میں کہنا چاہ رہے تھے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں پھر بہت سارے پولیٹیکل ریولیوشن بھی آئے جو کہ ہمیں ماڈرنٹی کے اندر نظر آئیں گے، انلائٹنمنٹ کے اندر نظر آئیں گے. تو لیکن 15 سینچری میں یہ آوازیں رائز ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے کہ جو ہے مور واز اے مین آف کانشیس اینڈ گیو اپ ہز لائف اپوزنگ انگلینڈ بیک ود دی رومن کیتھولک چرچ اوور دی. اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ بیسیکلی یہی ہے کہ کانشیسنس کا، عقل کا استعمال کیا جائے. اور یہ جو ریفارمیشن سے کس طرح کے تھے کہ جو کرپٹ ہے وہ کرپشن کا شکار ہو گیا چرچ جو ہے کیتھولک چرچ. اور جو ہے ہمیں اسپرچولیٹی، نو مور ریلیجیس اتھارٹی، وی آر ریکوائرڈ ٹو رول اوور دا اسٹیٹ. ریاست کو چلانے کے لیے ہمیں مذہبی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے موومنٹ چلائی. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کا پورا جو کانٹینٹ ہے ریلیجیس پروٹیسٹنائزیشن، تو اس کے اندر جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ ہے یہ آپ کی کور ہو جائے گی کہ لوتھر نے کس طرح کی بات کی. اس نے کہا کہ بائبل کو خود سے سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر اس نے لوگوں کو کہا کہ وہ سوال کریں، ڈیئر ٹو آسک اے کویشچن.
और रिलीजन को खुद से भी समझने की कोशिश करें, ना कि ये कि ब्लाइंडली जो चर्च बताया उसको आप मानते चले जाएं। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि स्टेट को और चर्च को अलहदा किया जाए। चर्च का काम जो है वो लोगों के स्पिरिचुअली ग्रो करना काम है, ना कि वो वेल्थ को कंट्रोल करके बैठ जाए और पूरी रियासत को चलाए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं ये आइडियाज जो हैं ये कहाँ तक फैलते चले गए, फिर जर्मनी में और पूरे यूरोप में ये जो प्रोटेस्टेंटाइजेशन है ये जो है वो आइडियाज चलते गए, और यूरोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वही जिसे आज हम कहते हैं कि लिबरलाइजेशन की तरफ जाता हुआ नजर आया। जर्मन में, फ्रांस में ये जो पेपेसी मतलब ये पोप का जो निज़ाम था वो हमें जो है वो ढलता हुआ नजर आया, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिफॉर्मेशन क्या थी, तो यही रिफॉर्मेशन सिर्फ यूरोप तक नहीं रही बल्कि फिर इंग्लैंड में भी इसका असर हुआ, और वहां पे भी जो क्रिस्टियनिटी थी उसमें ये रिफॉर्म्स आना शुरू हुए, और इस तरह दुनिया में ये न्यू ऑर्डर डेवलप हुआ कि रिलीजियस हाउसेज जो है वो बहुत सारे क्लोज हैं। देख रहे हैं आप, अबाउट 400 रिलीजियस हाउसेज वर क्लोज इन 1536, क्योंकि बताया कि आधे से ज्यादा जब पॉपुलेशन जो है वो रिलीजियस डोमिनेशन में नजर आती है। तो अभी हम अपने इस कंटेंट को अगर ओवरव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट वी डिड हियर इज अ कंटेंट। हमने जो आज देखा वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देखे कि मिडिवल एज में किस तरह से डोमिनेट कर रहे थे प्राइवेट लाइफ के अंदर, स्टेट अफेयर्स के अंदर, सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से रिलीजन एंड एनलाइटनमेंट के अंदर हमने देखा। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस जमाने की फिलॉसफी को समझें मिडिवल की, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स। व्हाट इज द ट्रुथ एंड रियलिटी ऑफ इन द मिडिवल एज। तो ट्रुथ भी देखें कौन डिटरमिन करेगा, रियलिटी कौन डिटरमिन करेगा, वो रिलीजियस अथॉरिटीज बताएंगी और वो कहेंगे कि डिविनिटी, गॉड और जो है स्प्रेड, यही ट्रुथ है, यही रियलिटी है। अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे कि व्हाट आर द ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, तो वो कहेंगे डिवाइन कमांड है, डिवाइन सोर्स है, और डिवाइन कमांड और डिवाइन सोर्स ऑब्वियसली बात किसके पास है अथॉरिटी, जो कि चर्च के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो बताएंगे कि असल इल्म क्या है, बाकी सब झूठ है। इसी तरीके से एक्सियोलॉजी यानी एथिक्स की बात करें तो वो भी डिटरमाइन कौन करेगा, रिलीजन। लेकिन यहाँ रिलीजन में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन करे थे कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमने बताया आपको जैसे कि ये पूरा चर्च का जो पैपेसी सिस्टम था वो सब बिशप, प्राइस और एबर्ट और ये जो लॉर्ड है, फिर लॉर्ड किंग, इनके हाथों में था। तो पूरा पॉलिटिकल आइडियल स्टेट उन्होंने डेवलप की, सिटी ऑफ जो एक गॉड का तस्वर था। इसी तरह अगर हम एस्थेटिक की बात करें आर्ट, तो मिडिवल आर्ट के अंदर भी हमें जो है वो रिलीजियस रंग नजर आएगा उस आर्ट के अंदर। उसमें इसी तरह की चीजें हमें नजर आएंगी, क्रूसाइड वगैरह हमें नजर आएंगी। और अब रह गई बात हमारी जो है वो सोशल पॉलिटिकल वैल्यूज, तो हमने देखा उसमें